पॉजिटिव न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी और मस्ती भरी नमस्कार। मस्ती भरी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल हम मस्ती की पाठशाला में जा रहे हैं, जो कि अलग अलग जगह पे चलाई जा रही है। और आज ऐसी ही एक मस्ती की पाठशाला में आए हैं सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में, और हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ की प्रिंसिपल मैम दीपाली गुप्ता जी। आइए इनसे जानते हैं कुछ इस स्कूल के बारे में और कुछ इस मस्ती की पाठशाला के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है दीपाली मैम आपका हमारे चैनल पॉजिटिव न्यूज़ में। Thank you so much, Neena ma'am. I'm really overwhelmed that you are here. थैंक यू सो मच मैम। इससे पहले कि हम समर कैंप के बारे में बात करें, क्योंकि आपका ये स्कूल का फर्स्ट सेशन है, तो मैं थोड़ा सा इस स्कूल के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने इसमें क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हैं, या जैसे अब और स्कूल से इसमें आपने कुछ जो भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी हैं, थोड़ा सा हम उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। Yes, ma'am. So it's a very genuine question, ma'am, when you are talking about the school. So as you know very well that we have started the school 2 months back, and it is a very new infrastructure, right. And we are a branch school. Right. That is, we have taken the franchisee from the State Anand Ram Jaipuria. And the benefit of having a franchisee school is that everything is being pre-decided. The curriculum is very well structured. They are arranging for the teachers trainings, for the principals they are arranging the trainings, and time to time they are having the audits that can provide you the scores of your teachers, how they are performing in the class, what kind of improvisation they require, everything, all the guidance you are having, right? So I feel ki if there is only one head, there will be one brain to means come up with the ideas, but if you are having the multiple brains, you will be having the multiple ideas. So first benefit is that one. The second one is that I am really thankful to my management that they are providing such a beautiful infrastructure. It is very well ventilated, it is very well lit, plus the entire infrastructure is AC, the entire campus is AC. As well as it is having all the modern technologies like smart panels are installed in the classes. As well as if I'll talk about that we are having RJ Studio in which we are sitting right now, and where these days in summer camp also the students are learning the skills of public speaking and how to present themselves on the channels, as this is the new era of I should say Instagram, Facebook, or this one YouTube. So we are providing each and everything in which a child can think about their career. They can take their passion as their profession as well. We have come up with the shooting range, and the students are doing wonders over there, because I feel that in this era everybody should be ready for all the type of situations to handle. If we talk about Israel, every civilian is a military person like that. So we are looking forward for such individuals to come up with such, to grow such individuals, those who are capable of doing all the things. As well as we have come up with the swimming pool, so that they can have a fun time, they can learn swimming. Means all the activities that the students need to learn, they are getting that. मैं समझ सकती हूँ आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये स्कूल में जैसे कि आप बता रहे हैं बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे ये स्टूडियो तो शायद अभी तक किसी भी स्कूल में नहीं है। प्लस अभी तक जितने स्कूल सहारनपुर में चल रहे हैं वो सब लोकल मैनेजमेंट के थ्रू चल रहे हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्कूल जिसकी पास ये फ्रेंचाइजी है, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं उससे। तो इसी करके मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका इन चीज़ों में कितना इंटरेस्ट है, या इस चीज़ से उनको कितना वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैम, पेरेंट्स आर रियली वेरी हैप्पी, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द किड्स, बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे अभी क्लासरूम में, तो आप देखेंगे कि बच्चों का कितना उत्साह है बच्चों में। और अभी हमने शायद 17 मई के आसपास हमारी PTM थी, पेरेंट्स आए एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। और एज अ पेरेंट अगर मैं कहूँ, मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, तो एज अ पेरेंट मैं कहूँ आई एम ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। माई चाइल्ड यूज टू से कि मम्मा आपका स्कूल ऐसा डिज़ाइन हुआ है जैसा हर बच्चा अपने सपने में देखता है।
क्योंकि हम वहाँ पढ़ने तो जाते ही हैं, पढ़ाई सभी जगह होती है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम इतना इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन 6 आवर्स में वो सब चीज़ें सीख रहे हैं। मतलब आप देखिए कि अभी शायद 1 से 1.5 महीना क्लासेस चली हैं और बच्चे मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अबेकस वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्विमिंग के स्टेप्स आ चुके हैं, शूटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब उनका शूटिंग तो अभी स्टार्ट हुआ है लगभग 15-20 दिन पहले, और वो बहुत अच्छा शूटिंग में जा रहे हैं। मतलब उनके जो टारगेट हैं वो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि इतनी सब चीज़ों के साथ वो ये सब कर रहे हैं, और पेरेंट्स का भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बड़े सारे बच्चों ने हमारा समर कैंप ज्वाइन किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मदर्स ने समर कैंप ज्वाइन किया है। तो हम इसको ये बोलेंगे, आपका स्कूल मतलब समर कैंप तो मस्ती की पाठशाला हो गया, लेकिन जो आपका स्कूल है वो एक सपनों की पाठशाला भी है। और एक्टिविटीज़ भी चलो कुछ अलग हैं, हर जगह अपने अपने लेवल से एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे स्विमिंग भी है, शूटिंग भी है, सब कुछ है, और बच्चे उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और बहुत शॉर्ट पीरियड में आप ये कह रहे हो, तो दैट मीन्स आपके बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जिस चीज़ का कि बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्टूडेंट्स के साथ साथ आप कह रहे हो कि मदर्स भी रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं। तो आप मदर्स के लिए क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हो? If I'll talk about the mothers, I just want to mention that we are providing the baking classes, we are providing the day-to-day makeover, sari draping and hair styling, कि आप डेली रूटीन में आप अपने आप को कैसे कैरी कर सकते हैं, that they need to learn. डांस क्लासेस उनके लिए अवेलेबल हैं, और वो स्विमिंग भी उनके लिए अवेलेबल है, और मदर्स शूटिंग में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा, शूटिंग दे आर ऑल्सो इंजॉइंग एंड दे हैव जॉइन द शूटिंग। और अभी तक हम 4 आवर्स का समर कैंप चला रहे थे, बट मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें टाइम मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो आई आस्क्ड टू द पेरेंट्स एंड टू द स्टूडेंट्स कि हम 1 आवर एक्सटेंड कर दें, तो दे सेड येस वेरी हैप्पीली। और फिर मुझे थोड़ा सा कंसर्न आया कि मदर्स भी आ रही हैं, हो सकता है उन्हें हाउस होल्ड चोर्स का थोड़ा टेंशन होगा, बट आई एम सरप्राइज टू सी दैट दे आर वेरी हैप्पी। दे सेड हाँ, वी आर रेडी, वी कैन स्टे 1 more hour. So that shows their enthusiasm and their how much they are enjoying. So that shows कि they are also enjoying a lot and having fun and good time, especially with the children. Yes. Whereas previously only children used to do the activities and mother used to sit aside. Yes. और फिर बच्चे को देखा और उसी में खुश हो गए। मैम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पे ऐसा कहना चाहूँगी, देखिए हमारे टाइम की अगर हम बात करें, इस तरह के समर कैंप्स नहीं होते थे, है ना। अब हम मदर्स बन गए हैं, तो क्या हमारी सीखने की उम्र खत्म थोड़ी ना हो गई है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आपको जहाँ जो सीखने के लिए मिले वो मिलना चाहिए। तो मेरा यही इसके पीछे थोड़ा सा मोटिव था कि जो मदर्स हैं, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि बच्चे की माँ उसकी पहली गुरु है, तो जब तक उसमें ही एंथुजियाज्म नहीं है कि मैं कुछ नया सीख लूँ, है ना, तब तक फिर वो बच्चे को कैसे मोटिवेट करेंगे। तो इसलिए हमने मदर्स को भी साथ में इंक्लूड किया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये प्रयास हमारा बहुत सफल रहा, क्योंकि काफ़ी मदर्स ने हमें ज्वाइन किया, और अब वो डेली बेसिस पे कभी केक बेकिंग हो रही है स्कूल में, कभी नान खताई बन रही है, एंड दे आर लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, और बहुत खुश हैं वो, और बच्चों के साथ आती हैं, बच्चों के साथ डांस एंजॉय करती हैं, जुम्बा एवरीथिंग। तो हमने मतलब जो देखिए अलग ये भी है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम उनके मेंटल हेल्थ के लिए या उनके फिजिकल हेल्थ के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री भी अवेलेबल करा रहे हैं। जैसे रोज़ मॉर्निंग में 30 मिनट्स हम जुम्बा या योगा सेशन ले रहे हैं। अभी हमने 6 जून को ये आपके 3 जून को हमने यज्ञ करवाया, है ना। तो यज्ञ में एक आध्यात्मिक जो था, मतलब हमारा ये था कि हाँ, जहाँ हम मस्तिष्क और शारीरिक विकास के लिए कुछ कर रहे हैं, वहाँ हम आध्यात्मिक विकास के लिए भी जोड़ें, क्योंकि जब तक आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है तब तक बाकी चीज़ों का बहुत महत्व नहीं है। ये ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये मतलब आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा दीपाली मैम आपसे बात करती है, और अब चलते हैं